بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی بے نام بے چینی ہے جو شاہی محلوں میں بھی سکون نہیں لینے دیتی اور ریشم کے بستروں کو بھی کانٹوں کی سیج بنا دیتی ہے۔ یہ وہ اضطراب ہے جو دولت، طاقت اور شہرت کے شور میں بھی دب نہیں پاتا۔ یہ وہ درد ہے جو ہجوم میں بھی انسان کو تنہا کر دیتا ہے۔ تصور کریں، کائنات کا خالق جس کی قسم کھانے کے لیے پوری کائنات کی وسعتیں موجود تھیں، جس نے سورج، چاند اور ستاروں کے نظام بنائے، وہ عظیم رب جب آپ کے اندر اٹھنے والی ایک چبھن اور ایک ملامت کی قسم کھاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کی وہ ندامت اللہ کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اس نے اسے اپنی وحی کا حصہ بنا دیا۔ نفس لوامہ کوئی بوجھ نہیں، بلکہ یہ خدا کا وہ آخری رابطہ ہے جو اس نے آپ سے ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہ وہ درد ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے اندر کا انسان ابھی مرا نہیں۔ یہ وہ کسک ہے جو ابلیس کے پاس نہیں تھی، اسی لیے وہ راندہ درگاہ ٹھہرا۔ اگر آپ کو اپنے گناہ پر رونا آتا ہے، اگر دل میں ایک تڑپ اٹھتی ہے کہ کاش میں ایسا نہ کرتا، تو مبارک ہو۔ یہ احساس شکست کی علامت نہیں، یہ بیداری کی نشانی ہے۔ آپ کا رب آج بھی آپ سے کلام کر رہا ہے، کیونکہ ضمیر کی ملامت دراصل خدا کی خاموش آواز ہے جو آپ کے دل کے دروازے پر کھڑی پکار رہی ہے، واپس آ جا، ابھی راستہ بند نہیں ہوا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج آپ اس ویڈیو کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کائنات کے اربوں انسانوں میں سے آج اسی لمحے آپ کا دل اس پیغام کی طرف کیوں کھچا چلا آیا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ محض یوٹیوب کا کوئی الگورتھم نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کے اندر جو ایک بے نام سی بے چینی ہے جو کبھی کبھی آپ کو گناہ کے بعد سونے نہیں دیتی، یا وہ تڑپ جو آپ کو اللہ کی یاد کی طرف مائل کرتی ہے، وہ دراصل اللہ کی پکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے نفس لوامہ یعنی اس ملامت کرنے والے ضمیر کو پہچانیں جو آپ کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ آپ صرف خواہشات کا مجموعہ نہیں، آپ اللہ کی امانت ہے۔ راز ذکر کی مٹھاس یہی ہے کہ یہ انسان کو خود سے جوڑتی ہے اور خود سے جوڑ کر اسے اللہ تک لے جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نفس لوامہ کی ان گہرائیوں میں اتریں گے جہاں سے ولایت کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں گناہ کے آنسو توبہ کے نور میں بدل جاتے ہیں۔ اگر آپ کا دل سچے سکون کی تلاش میں ہے تو یہ ویڈیو صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ آپ کے لیے ایک روحانی دعوت ہے۔ خوش آمدید، آپ ایک ایسی محفل میں آ چکے ہیں جہاں آج آپ کی روح اپنے رب سے کلام کرے گی۔ نفس لوامہ، ضمیر کی عدالت اور اللہ کی قسم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ محض تاکید نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی توجہ کو جھنجھوڑنے کا ایک الہی انداز ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ رکے، سنے اور سوچے۔ سورۃ القیامہ میں اللہ فرماتا ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ یہاں ایک نہایت گہرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے سورج، چاند، رات، دن، وقت اور قیامت جیسے عظیم حقائق کی قسم کھائی، لیکن یہاں اس نے کسی خارجی چیز کی نہیں بلکہ انسان کے اندر چھپی ایک کیفیت کی قسم کھائی۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟
ये वो नफ्स है जो गुनाह के बाद खामोश नहीं रहता। ये वो आवाज है जो इंसान के दिल में उठती है और कहती है ये ठीक नहीं था, ये तेरे शायाने शान नहीं था, तू इसके लिए पैदा नहीं किया गया था। नफ्स लव्वामा दरअसल इंसान के अंदर कायम एक अदालत है, ऐसी अदालत जिसमें कोई वकील नहीं, कोई झूठा गवाह नहीं और कोई रिश्वत नहीं चलती। ये अदालत खुद इंसान के दिल में लगती है और उस अदालत का जज इंसान का जिंदा ज़मीर होता है। दुनिया की अदालतें सबूत मांगती हैं, नफ्से लव्वामा नीयत देखता है। दुनिया की अदालतें अमल को देखती हैं, नफ्से लव्वामा दिल की कैफियत को जांचता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ज़ाहिरन नेक होते हैं, लोग उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उनका नफ्से लव्वामा उन्हें सोने नहीं देता। और बहुत से लोग ज़ाहिरन गुनहगार होते हैं, लेकिन उनका नफ्से लव्वामा उन्हें रुला रुला कर अल्लाह के दरवाजे तक ले आता है। यही नफ्से लव्वामा का कमाल है। क़यामत को कुरान ने यौमुल हिसाब कहा है, हिसाब का दिन, लेकिन नफ्से लव्वामा दुनिया में ही हिसाब शुरू कर देता है। जो इंसान इस दुनिया में अपने नफ्से लव्वामा के फैसले मान लेता है, वो क़यामत की बड़ी अदालत में जिल्लत से बच जाता है। इसीलिए बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं, नफ्से लव्वामा दरअसल क़यामत की एक झलक है जो अल्लाह ने इंसान के दिल में रख दी है। ये नफ्स इंसान को याद दिलाता है कि तू सिर्फ ख्वाहिशात, जज्बात और लज्जतों का मजमुआ नहीं, तू अल्लाह की अमानत है, तू एक मकसद के साथ पैदा किया गया है। जब इंसान गुनाह करता है तो नफ्से अम्मारा उसे वक्ती लज्जत का धोखा देता है, लेकिन जैसे ही वो लज्जत खत्म होती है, नफ्से लव्वामा जाग जाता है और वो सवाल करता है जिससे इंसान भागना चाहता है। तूने ये क्यों किया? क्या तुझे अपने रब का ख्याल नहीं आया? क्या तुझे मौत याद नहीं आई? ये सवाल इंसान को तकलीफ देते हैं, लेकिन यही सवाल इंसान को बचाते हैं। याद रखें, शैतान कभी नहीं चाहता कि इंसान सवाल करे। शैतान चाहता है कि इंसान गुनाह करे और फिर हंसकर आगे बढ़ जाए। शैतान के नजदीक सबसे खतरनाक इंसान वो है जो गुनाह के बाद रुक जाए, सर झुका ले और सोचने लगे, क्योंकि यही सोच तौबा की पहली सीढ़ी है। अगर अल्लाह आपसे नाराज हो जाता तो आपके दिल से ये मलामत ही छीन लेता, आप गुनाह करते और आपको कुछ महसूस न होता। यही असल अजाब है। इसीलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं, दिल का जिंदा होना नेमत है, चाहे वो दर्द की सूरत में ही क्यों ना हो। नफ्स लव्वामा इंसान को जानवर बनने से बचाता है। जानवर ख्वाहिश पूरी करता है और आगे बढ़ जाता है। इंसान ख्वाहिश पूरी करके शर्मिंदा होता है और यही शर्मिंदगी इंसान को इंसान बनाती है। अगर आज आपके दिल में दर्द है, अगर गुनाह के बाद आपका दिल भारी हो जाता है, अगर सजदे में आंख नम हो जाती है, तो जान लीजिए ये अल्लाह की तरफ से सजा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से दावत है। दावत के अभी वापस आ जा, मैंने तेरे दिल को अभी मुर्दा नहीं होने दिया। कुरान व हदीस की रोशनी में नफ्स लव्वामा की असल पहचान। जब कुरान नफ्स लव्वामा की कसम खाता है तो दरअसल अल्लाह ताला इंसान को ये सिखाना चाहता है कि असल कामयाबी बाहर की दुनिया को फतह करने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को संवारने में है। नफ्स लव्वामा इंसान के अंदर वो कैफियत है जो उसे खुद से मुतमईन नहीं होने देती जब तक वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक न हो। कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो जिसने नफ्स को पाक किया और नाकाम हो गया वो जिसने उसे दबा दिया।
ये आयत हमें बताती है कि नफ्स को दबाना कामयाबी नहीं, बल्कि नफ्स की इस्लाह करना कामयाबी है। नफ्स लव्वामा वो पहला दरवाजा है जिससे इस्लाह का सफर शुरू होता है। ये नफ्स इंसान को मजबूर करता है कि वो अपने आमाल का जायजा ले, अपने दिल की नीयत को टटोले और खुद से सवाल करे, और यही सवाल ईमान की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मोमिन मिरआतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। लेकिन औलिया फरमाते हैं, मोमिन का सबसे बड़ा आईना उसका अपना नफ्से लव्वामा है। ये आईना बनावट बर्दाश्त नहीं करता, ये झूठ कबूल नहीं करता, ये खुद फरेबी को फौरन तोड़ देता है। इसीलिए बाज़ औक़ात इंसान नेकी भी करता है, लोग तारीफ भी करते हैं, लेकिन दिल मुतमईन नहीं होता, क्योंकि नफ्से लव्वामा कहता है ये नेकी अल्लाह के लिए थी या लोगों के लिए। ये सवाल इंसान को बेचैन करता है, लेकिन यही बेचैनी दिल को रिया से बचाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व आमालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों और माल को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों और आमाल को देखता है। नफ्से लव्वामा दिल को बेदार रखता है ताकि इंसान इस नजर इलाही को ना भूले। ये नफ्स इंसान को ये एहसास दिलाता है कि असल कामयाबी गुनाह ना करने में नहीं, बल्कि गुनाह के बाद अल्लाह की तरफ पलट आने में है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून। हर इंसान खता करने वाला है और बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो तौबा करते हैं। ये हदीस नफ्से लव्वामा की तफसीर है, क्योंकि जो नफ्स मलामत करता है वही इंसान को तौबा पर आमादा करता है। अगर इंसान के अंदर नफ्से लव्वामा ना हो तो वो गुनाह को जवाज बना लेता है, अपनी गलतियों को दुरुस्त साबित करने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता दिल सख्त हो जाता है। कुरान ऐसे दिल के बारे में कहता है, सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम, फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए। दिल का सख्त हो जाना सबसे बड़ा रूहानी नुकसान है। इसके बरक्स नफ्से लव्वामा दिल को नर्म रखता है, ये आंसू लाता है, ये सजदे लंबे करवाता है, ये इंसान को रातों में जगाता है। ये नफ्स इंसान को बार बार याद दिलाता है कि तू अभी रास्ते में है, मंजिल पर नहीं पहुंचा। औलिया अल्लाह फरमाते हैं, वो शख्स हलाक हो गया जो अपने हाल से मुतमईन हो गया। नफ्से लव्वामा इंसान को इस झूठी तसल्ली से बचाता है। ये कहता है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी अल्लाह की रजा दूर है, अभी सफर खत्म नहीं हुआ। अगर आज आपको अपनी इबादत में कमी महसूस होती है, अगर आपको लगता है कि आपका दिल वैसा नहीं रहा, अगर आपको अपनी दुआओं में वो लज्जत नहीं मिलती, तो ये मायूसी की बात नहीं, ये नफ्से लव्वामा की बेदारी है। ये नफ्स आपको नफ्से मुतमईना की तरफ बुला रहा है। लेकिन याद रखें, वहां तक पहुंचने के लिए इस मलामत के मरहले से गुजरना जरूरी है। जिसने इस मलामत को कबूल कर लिया, उसने इस्लाह का दरवाजा खोल लिया, और जिसने इसे दबाया, उसने अपने दिल पर खुद ताला लगा लिया। औलिया अल्लाह की जिंदगियां, नफ्से लव्वामा की अमली तरबियत। ये बात याद रखनी चाहिए कि औलिया अल्लाह वो लोग नहीं थे जिनसे कभी लग़्ज़िश न हुई, बल्कि वो लोग थे जिनका नफ्से लव्वामा इतना जिंदा था कि एक लम्हे की गफलत भी उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती थी। उनके नजदीक गुनाह सिर्फ कानून शिकनी नहीं था, बल्कि महबूब हकीकी की नाराजगी का अंदेशा था, और यही अंदेशा उनके दिलों को जिंदा रखता था।
हजरत जुनैद बगदादी, नफ्स जो दूसरों के दर्द तक ले जाए। हजरत जुनैद बगदादी, जिन्हें सैयदुत ताइफा कहा जाता है, फरमाते थे, मैं अपने नफ्स पर इस वक्त तक एतमाद नहीं करता जब तक वो खुद अपने आप को मुजरिम न समझे। एक रात आप आराम फरमा रहे थे कि दिल में एक बेनाम सी बेचैनी जाग उठी। नफ्स लव्वामा ने मलामत की, जुनैद, तू सो रहा है और तेरे शहर में कोई बंदा अल्लाह के सामने रो रहा है। आप फौरन उठे, गलियों में निकले और एक शख्स को सजदे में गिरा हुआ पाया जो आहो बका कर रहा था। वो शख्स कह रहा था, ऐ अल्लाह, अगर जुनैद तेरे नजदीक मकबूल है तो उसे मेरे पास भेज दे। ये सुनकर हजरत जुनैद पर लर्जा तारी हो गया। ये नफ्से लव्वामा ही था जो एक वली को दूसरों के दर्द से जोड़ता है, वरना इल्म, इबादत और मकाम इंसान को खुद में गुम कर देते हैं। हजरत फुजैल बिन अयाज, एक आयत एक इनकलाब। हजरत फुजैल बिन अयाज कभी मशहूर डाकू थे, लोग उनके नाम से कांपते थे। लेकिन एक रात जब वो गुनाह के इरादे से एक दीवार फलांग रहे थे, उनके कानों में कुरान की ये आवाज पड़ी, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं? ये आयत दिल में तीर की तरह लगी। नफ्से लव्वामा पूरी शिद्दत से जाग उठा। आप चीख पड़े, ऐ मेरे रब, वक्त आ गया, अब मैं वापस आता हूँ। ये मलामत एक डाकू को जमाने का इमाम बना गई। यही नफ्से लव्वामा का मौजज़ा है। हजरत बायजीद बस्तामी, मैं की नफी हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं, मैंने 30 साल अपने नफ्स को मुलामत के कोड़े मारे, तब कहीं जाकर उसने सर झुकाना सीखा। एक मर्तबा दिल में ख्याल आया, मैं बहुत बड़ा आबिद बन गया हूँ। फौरन नफ्से लव्वामा बोल उठा, बायजीद, ये ख्याल ही तेरे जवाल के लिए काफी है। आप फौरन बाजार में निकले, लोगों के सामने अपनी इज्जत को तोड़ा ताकि नफ्स की अना टूट जाए। ये वो मकाम है जहां नफ्से लव्वामा नेकी में छुपे जहर को भी पहचान लेता है। हजरत राबिया बसरी, नीयत की अदालत। हजरत राबिया बसरी अक्सर अपने नफ्स से खिताब करती, ऐ नफ्स, अगर तूने अल्लाह की इबादत जन्नत की ख्वाहिश में की या दोज़ख के खौफ से की तो तू ताजिर है, आशिक नहीं। ये आला तरीन नफ्से लव्वामा है जो नेकी में छुपी हुई गर्ज को भी मुलामत करता है। हजरत बशर खाफी, एक लम्हा एक जिंदगी। हजरत बशर खाफी लहू व लहब में गुम थे कि रास्ते में अल्लाह के नाम का एक कागज देखा। नफ्से लव्वामा ने कहा, ये नाम गंदगी में नहीं रह सकता। आपने उसे उठाया, साफ किया, खुशबू लगाई और ऊंची जगह रख दिया। इसी रात गैबी आवाज आई, ए बशर, तूने हमारे नाम को इज्जत दी, हम तेरे नाम को दुनिया व आखिरत में बुलंद करेंगे। ये सब वाकयात एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। नफ्से लव्वामा अगर जिंदा हो तो इंसान कहीं से भी लौट सकता है। आज का इंसान, नफ्से लव्वामा और वापसी का रास्ता। मेरे अजीजों, नफ्से लव्वामा कोई किताबी इस्तिलाह नहीं, ये कोई सूफियाना फलसफा नहीं, ये कोई माजी के औलिया तक महदूद कैफियत भी नहीं। नफ्से लव्वामा आज भी जिंदा है, आपके अंदर भी जिंदा है। बस फर्क ये है कि आज का इंसान इस आवाज से भागना सीख गया है। हम शोर में जीना सीख गए हैं ताकि दिल की आवाज ना सुनाई दे। हम मोबाइल, स्क्रीन, मसरूफियत और हंसी में अपने ज़मीर को दबा देते हैं, लेकिन नफ्से लव्वामा दबाया नहीं जाता।
वो इंतजार करता है, वो रात की तन्हाई में बोलता है, वो सजदे के आखिरी लम्हे में जागता है। वो उस वक्त सामने आता है जब दुनिया खामोश हो जाती है और सिर्फ अल्लाह बाकी रह जाता है। अगर आज आपके दिल में ये सवाल उठता है, मैं ये क्या बन गया हूं, मैंने कहां गलती की, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा, तो जान लीजिए ये सवाल मायूसी की अलामत नहीं, ये जिंदगी की अलामत है। जिस दिल में सवाल खत्म हो जाए वो दिल मर जाता है। नफ्स लव्वामा इंसान को यही सवाल अता करता है और यही सवाल इंसान को वापस अल्लाह की तरफ मोड़ते हैं। आज का सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान ये समझने लगे कि गुनाह के बाद शर्मिंदा होना कमजोरी है, हालांकि हकीकत ये है कि गुनाह पर बेशर्म हो जाना असल हलाकत है। औलिया अल्लाह फरमाया करते थे, वो आंसू जो गुनाह के बाद बहें वो 1000 नफलों से बेहतर हैं जो गरूर के साथ पढ़े जाएं। नफ्स लव्वामा इंसान को तोड़ता नहीं, इंसान को झुकाता है, और जो झुकना सीख जाए वही अल्लाह के करीब होता है। अगर आप चाहते हैं कि नफ्स लव्वामा आपके लिए अजाब ना बने बल्कि रहमत बन जाए, तो इसके साथ लड़ना नहीं, उसे सुनना सीखें। जब दिल मलामत करे तो इसे खामोश ना करें, उसे कहें, बोल, मुझे सच बता। जब ज़मीर कहे कि ये गलत था तो खुद को जवाज ना दें, सीधा सजदे में चले जाएं। यही सजदा नफ्स लव्वामा को नफ्स मुतमइना की तरफ ले जाने वाला पुल है। याद रखें, अल्लाह ने नफ्स लव्वामा को आपका दुश्मन बनाकर नहीं भेजा, वो इसे आपका मुहाफिज बनाकर भेजता है। ये मुहाफिज आपको वहां रोक लेता है जहां आपका ईमान टूटने के करीब होता है। ये आपको याद दिलाता है कि अभी दरवाजा बंद नहीं हुआ, अभी अल्लाह गफूर है, अभी अल्लाह तौबाब है। लेकिन एक खतरा जरूर है, अगर इंसान बार बार नफ्स लव्वामा की आवाज को नजरअंदाज करे, अगर वो बार बार इस मलामत को दबाए, अगर वो खुद को हर गुनाह पर मुतमईन करता रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आवाज मध्यम हो जाती है। और जिस दिन ये आवाज खामोश हो जाए, वो दिन सबसे खतरनाक दिन होता है। इसीलिए औलियाए अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह हमसे सब कुछ ले लेना, लेकिन हमारे दिल से निदामत न लेना, क्योंकि निदामत रहमत की आखिरी निशानी है। आज अगर आपका दिल बोझल है, अगर माजी की गलतियां आपको रुलाती हैं, अगर दिल चाहता है कि सब कुछ छोड़कर अल्लाह के सामने बैठ जाएं, तो जान लीजिए ये दावत है, डांट नहीं। ये नफ्से लव्वामा आपको वापस बुला रहा है। आज अपने नफ्स को कटहरे में खड़ा कीजिए, उसे मलामत कीजिए, उससे सच उगलवाइए, लेकिन फिर मायूसी में न रुक जाइए, क्योंकि नफ्से लव्वामा का मकसद इंसान को शर्मिंदगी में कैद करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत तक पहुंचाना है। और जिस दिन ये मलामत सजदे में बदल जाए, आंख आंसू में बदल जाए और दिल अल्लाह के सामने झुक जाए, वही दिन असल कामयाबी का दिन होता है। ये अल्लाह की खास रहमत है कि उसने हजारों लाखों लोगों में से आपके दिल में ये तड़प पैदा की और आपको इस पैगाम तक पहुंचाया। शायद अल्लाह आपके दिल की किसी बेचैनी को सुकून में बदलना चाहता है, शायद वो आपकी तौबा कबूल करना चाहता है, या शायद वो आपको अपने और करीब करना चाहता है। याद रखिए, जिस दिल में निदामत बाकी है, वो दिल अल्लाह की नजर से दूर नहीं होता। अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर नफ्से लव्वामा की ये आवाज आपके अंदर जाग उठी हो, तो इस खैर के सफर में हमारे साथी बने। इस पैगाम को लाइक करें ताकि ये उन दिलों तक भी पहुंचे
जो खामोशी से तड़प रहे हैं। कमेंट में अल्लाह ताला का कोई भी सिफाती नाम लिखकर अपनी हाजिरी लगवाएं ताकि ये महफिल जिक्र और वसी हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस रूहानी खानदान का हिस्सा बने ताकि दिल की ये बेदारी एक लम्हे की न रहे बल्कि जिंदगी का रास्ता बन जाए। क्या पता आपका एक शेर किसी सोए हुए ज़मीर को जगा दे और किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह आपके दिल को अपने जिक्र के नूर से भर दे, आपके नफ्स को पाक करे और आपको इस मकाम तक पहुंचा दे जहां दिल मुतमईन हो जाता है। जज़ाकल्लाहु खैरा।